Let's start today the classification of the material based on the based on their behavior when placed in an external electric field. तो जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उनका बिहेवियर कैसा होगा. बेस्ड ऑन दैट we have classified the material into two categories which you already know. What are they? These are conductors and insulators. So what is the classification of the material based on? Again, conductors and insulators. एक क्वेश्चन और आता है कि इनका एक दूसरा नाम और होता है, इंसुलेटर्स का ही एक दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक्स. डाई इलेक्ट्रिक. व्हाई दे आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक? ठीक है, व्हाई इंसुलेटर्स आर समटाइम्स आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक. तो उसका रीजन भी अभी हम देखते हैं. तो सबसे पहले कि कंडक्टर्स किस बेस पर बोल रहे हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो. तो थोड़ी देर के लिए मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर किसी मटेरियल को, किसी भी रैंडम शेप्ड किसी मटेरियल को मैं रख देता हूं. मैंने इसको, इस मटेरियल को रख दिया है इसके अंदर. बेस्ड ऑन दैट ये मटेरियल या तो कंडक्टर कहलाएगा या इंसुलेटर कहलाएगा. ये कैसे पता चलेगा? तो इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा. क्या? जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा जाएगा तो अगर ये जो कंडक्टर है, तो हमें पता है व्हाट आर कंडक्टर्स. बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर? एक्सक्यूज मी. सो अवश्य अगर ये कंडक्टर से, तो वी ऑलरेडी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर. क्या? कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच हैज और व्हिच possesses plenty of free electrons. Plenty of free electrons. What are free electrons? जल्दी से उसका भी देख लेते हैं, वैसे पता होगा आप लोगों को. So what are free electrons? Free electrons are those valence shell electrons or outermost shell electrons on which the electrostatic force of attraction of the nucleus is very, very, very less, in such a way that they are almost free to move, or they has tendency to leave their atom, constituent atom, and hence as they will get the little bit of energy, that is called the work function. What is the work function here? The term I am using, which you should know. Work function is that minimum amount of energy required to remove the outermost shell electron. So any outermost shell electron would be released or would be removed from its constituent atom by whatever amount of energy is called work function. So right. So if little bit of work function is there, that means with minimum amount of energy, the electron can be taken out from their constituent atom. So those materials which possesses such tendency just to leave their outermost shell electrons quickly, because the force of attraction of nucleus is very, very minimum, these kind of materials or elements or atoms are considered as what? Metals generally, or conductors, because they give what? Free electrons. Now these free electrons, particularly remember, they cannot move in air. If this is the iron bar which is made up of billions of atoms of Fe, or you can say Cu, if this is the copper, then Cu. So I'm just taking the example, these are the atoms of Fe right now. Fe. Now all such atoms, what they do, they are possessing the free electron. What are the free electrons? The outermost shell electrons are free. It means they can leave their atoms by absorbing little bit amount of energy. What could be that energy? That could be the sunlight energy. That could be any normal heat. That could be atmospheric temperature. That means heat as well. So if, or by applying some electric energies. So let's suppose one of the electron has left its atom. So now this is called Fe plus. So this Fe plus is bounded. It cannot move. This Fe plus ion, which made because of this electron, because this electron left this constituent atom. So this Fe plus is known as parent ion or parent nucleus, right?
or immobile positive ion. So more appropriately, if we are talking about the conductors, insulators, as well as the positive ion, negative ion, positive charges, negative charges, mobile charges, immobile charges. So in terms of mobile and immobile, mobile means those charges which can move. Immobile means those charges which cannot move. So Fe plus is the immobile nucleus or immobile positive ion. Similarly, if this electron will leave its constituent atom and it will come here, then this will also become Fe plus. So I am just showing all the electrons have left the constituent atoms, and that's why all the atoms has become ions. Which ions? Positively charged ions. Now each and every atom of Fe has provided a free electron, one free electron, let's suppose, right? And hence they have become positively charged immobile ions, while the electron, those electron which already left their constituent atom, are considered as mobile negative ions, right? So we are having two kinds of charges here, positive ions, and electrons are considered as negative ions. Now these positive ions are immobile. That means they can't move, they would be there only. And these negative ions are the free electrons, and these free electrons are ready to move here and there, which are considered as mobile ions. But what we should know, these electrons would be moving only and only inside the conductor. They cannot move outside the conductor on their own, right? So one second. So I guess कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं आएगा, कहां पे मूव कर सकता है? अंदर ही अंदर अपने इस जो आयरन बार है, जिससे आयरन की रॉड मिलकर के बनी, उस आयरन रॉड के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकता है. अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर इस एटम के अंदर भी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. लेट्स सपोज दिस वाज द outermost free electron, and this left this constituent atom. That's why this has become plus 1. Now, but those electrons on which the nucleus attraction is very much, and that's why they can't leave its constituent atom, these such electrons are called bounded, and they are also immobile. So these are also immobile electrons or bounded electrons. So immobile are also considered as bound charge. So these positive ions are also bound charges, and these electrons are also innermost electrons are also considered as bound charges. So we are having mobile, immobile, or mobile and bounded charges, right? So we got to know what are free electrons. So definition of conductor state that the materials which possess plenty of free electrons are considered as conductors. Now, based on electric field, how I will get to know this is the conductor or not? How will I get to know? Because I have not applied any battery. Because here we check it by applying some terminals, positive, negative, just like some batteries, pencil cell, or etc. Right? I have not applied any battery here. I have just kept the material inside the electric field, and I just want to know that this material is conductor or insulator. How I'll get to know? So let's suppose this is the conductor and we want to test. So now, according to the definition, it should be possessing a lot of free electrons, plenty of free electrons, right? And these free electrons are what kind of charges? Mobile charges. Yes, they can move readily here and there inside the material. Let's suppose this is conductor. Okay, so it means that it is possessing lot of free electrons, right? A lot of free electrons. Okay. Now, if they're free to move inside the conductor, inside the material, then it will be experiencing some force. Why? Because this electric field is because of some charge system only. We know that any electric field is given by some positive and negative charge system in such a way that electric field lines always move from positive to negative side.
So let's suppose this electric field is because of such charge system, positive, negative charge system. Now these are the negative charge, negative mobile ions or mobile charges, negative mobile charges or movable charges. Now these negative electrons would be attracted where? Towards the positive side. It means, what do we say? We don't generally express or visualize this one, these are things, such things are considered in our mind only. We don't show. So what we are going to show only this electric field arrows. So we know this side should be positive and arrow side should be negative. Electrons are negative charges. It means they will be getting a drift. They would be attracted to a positive side. It means initially when the material is there, and let's suppose it was conductor, each and every electron was moving here and there in any random direction, just like in any conductor it happens. But as I'll keep it inside this electric field, what will happen? They would be attracted to a positive side. It means this electron which was moving in this side would be forcefully attracted towards the positive side. This electron which was moving in this side will be all again forcefully attracted this side. All the electrons would be attracted only and only this side, wherever and whatever would be their direction, doesn't matter. All will be drifted. Drifted means, drift कैसा वर्ड है? घसीटना, है ना? जैसे पुराने पिक्चरों में हीरो घोड़े पे बैठता था और विलेन को फंदा लगा करके घसीटता था, that kind of drifting. जा कहीं पे भी रहो, घसीटता हुआ इधर की तरफ आएगा. So what will happen? Electrons will try to move. As they will move, some current would be set up, and we'll get to know कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है. This side will become more negative charge, and electrons has been moving in a particular direction. Electric current would be generated. तो इसका मतलब किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अगर वो एक इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्स्टिट्यूशन शो कर दे, we'll say the material was a conductor. That's how we'll get to know. हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, लेकिन हमने क्या बोला? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कंडक्टर को, और अगर उसमें से कोई करंट फ्लो हो पा रही है तो हम कह देंगे कि साहब व्हाट इज दिस? इट इज अ कंडक्टर, सिंपली, राइट? नाउ अभी हमें नहीं पता था कि मान लीजिए एक और मटेरियल, दो मटेरियल साथ में रखे गए, ये एक और रख दिया, इसमें ऐसा हुआ कि इसमें से करंट शो हो रही है लेकिन इसमें करंट शो नहीं हो रही. इसका मतलब हम कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ दिस वन इज इंसुलेटर. क्यों इंसुलेटर? वी नो दैट insulators are those materials which possess either no free electrons or very few or negligible free electrons. For example, wood, mica, glass, diamond, pure distilled water, all such examples are of plastic, are of insulators. तो उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना मैक्सिमम होता है कि इन एनी कंडीशन दे कांट मूव, और अदरवाइज अगर मूव कराना है तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी है. तो जितनी एनर्जी दोगे उतने में तो आप दूसरे से कंडक्ट करवा लोगे, राइट? इसका मतलब इन जनरल दे डोंट शो इलेक्ट्रिक बिहेवियर when the materials which do not show the conduction or electric current constitution when placed in an external electric field are considered as what? Insulators. Insulators. These are also called dielectrics. क्यों dielectrics कहते हैं वो भी देखते हैं. तो अब यहां पे वर्ड आया डाइइलेक्ट्रिक्स. तो इलेक्ट्रिसिटी से तो रिलेटेड है, तो कैसे होगा? आप सोचो, आप लोगों ने बचपन में गेम में अगर ऐसे खेले हो, है ना, कि जिसके अंदर ऐसे तौली से ऐसे गोल गोल घुमा के प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं बच्चे और उनको पीछे से मारते हैं, घोड़ा क्यों मार का है, पीछे देखे मार का है, ऐसा कुछ गेम हुआ करता था बचपन में. आप लोगों ने पता नहीं खेला हो, नहीं खेलो. और ऐसी बहुत से बार हम बस में जा रहे होते हैं, सीट पे बैठे होते हैं, प्लास्टिक सीट्स होती है, उस पर वो बस मूव होने के कारण जर्क आते रहते हैं, कंटिन्यूसली हम क्या होते रहते हैं, उस पर एक तरह से सीट के साथ फ्रिक्शन में रब होते रहते हैं. तो होता क्या, हमें पता है कि whenever two objects would be rubbed, due to friction the charge would be transferred from one object to another because of the change in their work function. एक वर्क का वर्क फंक्शन कम होगा कंपैरेटिवली, एक का ज्यादा होगा, तो जिसका कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे की तरफ चले जाएंगे. अब होगा क्या, बेसिकली
ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, प्लास्टिक चेयर कैसी बॉडी है, इंसुलेटर है, तो किसका वर्क फंक्शन कम होगा, ह्यूमन बॉडी का कम होगा। ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, हम हो गए पॉजिटिवली और दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब हुआ क्या, हमें पॉजिटिवली चार्ज, अब हमें कोई कंडक्टिंग मटेरियल क्लिक करे यानी कि टच करे तो हमें करंट झटका लगता है, क्यों? आपने देखा होगा सीट पर बैठने के बाद कोई हम उठ रहे हो और या हमें कोई टच कर ले तो हमें एक झटका सा लगता है। उसका रीजन कि वो जो चार्ज की डेफिशिएंसी आई हमारे अंदर दूसरे कंडक्टिंग बॉडी में से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर ट्रांसफर होंगे, और हमारे अंदर अगर ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी से मूव करने का मतलब एक करंट जनरेट हुई और उस करंट के कारण हमें एक झटका लगा, यानी कि हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी से करंट पास हुई। ये तो हुआ ह्यूमन का, लेकिन वो जो प्लास्टिक चेयर है उस पे भी तो चार्ज है, उसका चार्ज क्या होता है? वो चार्ज, अगर ये जो प्लास्टिक चेयर है, ठीक है, तो इस प्लास्टिक चेयर पर यहां पर मान लीजिए रब होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट अलाउड टू मूव हियर एंड देयर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्रिक्शन वाले इलेक्ट्रॉन जो इंसुलेटर्स में होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि ये भी यहां पर है तो दोनों ही चार्ज ही, दीज आर फ्री यानी कि मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर अगेन एटम से नहीं है, एटम से बाउंडेड नहीं है, फिर भी दे आर इमोबाइल। तो बाउंडेड वर्ड जनरली यूज किया जाता है एटम्स के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बंधे हुए होते हैं, एटम को छोड़ नहीं सकते, इनर शेल्स में होते हैं, उनको हम बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी, ये मोबाइल चार्जेस हैं, इनको हम बाउंड चार्ज की जगह हम बोलते हैं इमोबाइल चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस। सो स्टैटिक चार्जेस, इसको बोल रहे हैं स्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, दीज आर द स्टैटिक्स। तो ये कहीं पे और मूव कर ही नहीं सकते इसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते? आपने केमिस्ट्री के अंदर ग्रेड 11 में पढ़ा होगा कि बैंड्स पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कहां पर? वैलेंस बैंड में। ये इनका एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल जितना वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है W0, ठीक है। वन सेकेंड, तो जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम क्या? वैलेंस बैंड, लोअर बैंड, उसके टॉप पे होता है कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड वो रीजन है जहां पर ये सरफेस वाला रीजन है ना, जैसे आप सोचो कि लोहे की टेबल है, आयरन टेबल, तो उसका जो सरफेस है आप उसको समझने के लिए, टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको समझने के लिए मान लो कंडक्शन बैंड है, और उसके अंदर की जो लेयर्स है उसको समझने के लिए मान लो कि वैलेंस बैंड है। तो क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आते हैं? वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर आते हैं, और यहां पर ये इसी कंडक्शन बैंड के अंदर इसी लेयर में इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। इतनी सी एनर्जी इनको बहुत कम चाहिए, मान लीजिए 0.01 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन, इतनी सी, मतलब मेटल में बोलोगे तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बहुत कम, ये गैप बहुत कम रहता है। इंसुलेटर्स में ये जो इन दो बैंड्स के बीच का गैप है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज्यादा देंगे तब जाकर के ये आ पाता, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ पाते कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। अब उतनी एनर्जी नहीं है, अब एनर्जी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? अपनी जो लेयर है उसमें रिजाइड कर रहे हैं। अब किसी ने मान लो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर भी दिया, तो ट्रांसफर किया है तो वो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, हमेशा कहां जाएगा? उसकी इन बिटवीन या इस वैलेंस बैंड में। एक्चुअल में ये एनर्जी गैप है, इसमें कुछ नहीं होता, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं इसको। तो यहां पे क्या, अब ये मूव कहीं नहीं कर सकता, जहां है वहां हो गया, यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए हम बोलते हैं -1 का चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो हम बोलेंगे -2 का चार्ज आ गया, ये इसका मीनिंग होता है। तो हो गया सब नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन वो चार्ज वहीं रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुक नहीं रहा, मतलब मूव नहीं कर रहा, बाउंडेड है, ठीक है, इमोबाइल है। तो ये हो गया स्टैटिक चार्ज। अब लेकिन इसको अगर किसी तरीके से कंडक्टिंग मीडियम दे दिया जाए तो ये चार्ज उस कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू तो फ्लो हो जाएगा, तो बिल्कुल फ्लो हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे स्टैटिक चार्ज है, उसके दोनों तरफ एक पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर दे, यानी कि सिंपली एक बैटरी लगा दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम बोलेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। कौन सी करंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। इसी वजह से
ऐसे सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जो होते इंसुलेटर्स हैं, लेकिन उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर अगर उनके ऊपर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को फ्लो करवा दें जिससे कुछ इलेक्ट्रिक फेनोमेनन देखने को मिल जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। जो इन जनरल जब प्लेस किए जाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फेनोमेनन शो नहीं करेंगे, लेकिन जब वो रब किए जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, जो चार्ज की उनकी डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी जिस भी टाइप के हुए थे वो रब उनमें से एक, तो जो भी होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में शो, अगर चार्ज स्टैटिक था तो वो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन शो कर दें, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो इन जनरल ऐसे कोई भी मटेरियल जो किसी भी कंडीशन में स्टैटिक मटेरियल परचेज नहीं कर पाए उनको हमेशा हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। दैट्स द मेजर डिफरेंस। जनरली बुक्स के अंदर जो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में दोनों वर्ड को सिमिलर तरीके से लिया जाता है, लेकिन बेसिक अगर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस की बात करूं तो माइन्यूट सा डिफरेंस क्या आया, इंसुलेटर हमेशा उस सिचुएशन में वर्ड को यूज में ले रहे हैं जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फेनोमेनन शो ना करे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का फेनोमेनन शो ना करे। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल जो इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते लेकिन उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो कुछ सर्टेन इलेक्ट्रिक फेनोमेनन शो कर दें फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो कितनों को समझ में आ गई यहां तक की कहानी। अच्छा, चार्ज और कहां से भी मिल जाते हैं हमें, चार्ज और हमें मिल जाते हैं एक जगह से और। तो एक तो हो गया कि क्लासिफिकेशन तो हमने कर दिया, अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। चार्ज दो टाइप के ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक तो ऐसे कंडक्टर्स में नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इंसुलेटर में भी नेगेटिव चार्ज या तो बहुत ही नेग्लिजिबल है या है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं और कहां पर हमें चार्ज देखने को मिल सकते हैं जिसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो वो हमने देखा था शुरू में जब चार्ज का क्लासिफिकेशन किया था। तो चार्ज टू टाइप से, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस में हमने बोला प्रोटॉन एंड ऑल पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव चार्जेस में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस में प्रोटॉन आ गया, लेकिन प्रोटॉन कभी भी सॉलिड के अंदर मूव नहीं कर सकता, इवन लिक्विड में भी मूव नहीं कर रहा है। तो लेकिन क्या फिर पॉजिटिव आयन कहां से मूव करेंगे, तो करते हैं कहां पर, लिक्विड के अंदर आयनिक फॉर्म में। तो मान लीजिए कि एक लिक्विड एक लिया मैंने NaCl रख दिया है, कोई सा भी वाटर के अंदर सॉल्यूशन ले लिया, वाटरी सॉल्यूशन, और उसके अंदर आयंस है, Na+ है, Cl- है, ठीक है, बहुत सारे। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस बीकर को उठा करके इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो मैं क्या शो कर दूं, यहीं पे शो कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने शो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेसिकली होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर जो NaCl और बच रहे होंगे वो भी ब्रेक होते हुए चले जाएंगे। कैसे ब्रेक होंगे देखना। अभी जो ब्रेक हुए हुए आयनिक फॉर्म में है ही सही सारे, बहुत सारे। तो अब होगा क्या, Na+ Cl-, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन हमेशा ध्यान रखें किधर की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी लाइन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयंस always move in the opposite direction of the applied electric field. फिर से, all type of negative charges always drift, always move in the opposite direction of प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होगा, आप सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इधर है तो इसका मतलब इधर किस टाइप का चार्ज सिस्टम रहा होगा, पॉजिटिव। तो इधर कौन से चार्ज अट्रैक्ट हो रहे होंगे, नेगेटिव। इसलिए हम बोल रहे हैं, तो ये नेगेटिव इधर जा रहे हैं का मतलब मैं बोल दूं क्या कि नेगेटिव की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्जेस वुड बी ऑलवेज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द in the opposite direction of the electric field, while positive charges always drift towards the electric field. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे। देखिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा। ठीक होना चाहिए था ऐसा, लेकिन जनरली देखने को नहीं मिलता। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे तो आपको ये जरूर है कि ये मोशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपने इन जनरल रख रखा है कि कंपैरेटिवली इनके बराबर का ही। तो अब होगा क्या, यहाँ पे
ये मोशन होनी चाहिए थी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, लेकिन ये दोनों भी तो अपने एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे होंगे। सोचो, ये NaCl, Cl को ये अपने से दूर नहीं जाने देगा। मान लो इधर आ गया, बस इससे ज्यादा ये दूर नहीं जाने देगा, ये और जाना चाह रहा है प्लस के पास, लेकिन ये खुद भी तो प्लस है। तो ये NaCl एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? कौन सा फोर्स लगाएंगे? आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस Q1 Q2, दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, कूलम्ब फोर्स, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², है ना। कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। किन के बीच में लग रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। यानी कि जब हमारे पास आयंस होते हैं, और आयनिक दोनों टाइप के आयंस होते हैं, तो उनकी मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, बिकॉज ऑफ दिस कूलम्ब फोर्स। इन पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आते इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आते। होना चाहिए था ऐसा, लेकिन इनके बीच में एक और फोर्स है जिससे वो एक हद से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ द आयंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द कूलम्ब फोर्सेस। कितनों को ये वाली चीज भी अच्छे से समझ में आ गई?